अंडरस्टूड? यस सर। ऐसे होगा ना कि आपने जो कहा वो होगा। आई एम गोइंग मतलब हुआ कि मैं जा रहा हूं। आप जा रहे हैं कि आप जा चुके हैं? हम जा चुके हैं सर। तो फिर और जाके आ Yesterday भी I गए। went. I went. यस्टरडे आई वेंट, गो का वेंट हो जाएगा यस्टरडे कल टू बोकारो। एंड व्हाट यू आर सेइंग आई एम गोइंग, you are saying that currently you are doing, you are going. Okay, so you should try to focus on these kind of grammatical mistakes as well, because we are doing this managerial skill, and that is related to communication only. So we are studying communication without focusing on grammar or making several mistakes. Should it be acceptable or not? Abhijit, I am asking you. Yes sir. It should not be acceptable. Then Yes. you should think before you speak. Okay, so should we wait for some time for other students or start the session? Okay, okay. So today we will begin with page 22, and that is process of communication. So the communication process refers to the steps or stages that occur when information is transmitted from the sender to the receiver. Effective communication is a dynamic and iterative. What does it mean by the word iterative, Abhijit? Is it visible to Sir, you? effective, Can iterative. you can you read? You read the third line. Okay, you read from the beginning the communication process. You read from here. You will find a word what I have just uttered, and that word's meaning I want you to succeed. Effective communication is essential to organizational success. कंक्लूजन के बाद से नीचे में है द सर प्रोसेस वहां ऑफ से कम्युनिकेशन. शो नहीं कर रहा सर। Please scroll down a bit in this page itself, page 22. Yes. This para only. This para only. The process of communication. You read. Okay. The process of communications. The communications process refer to the step or stages that occurs when information is transmitted from the sender to the receiver. Hmm. Effective communication is a dynamic and iterative So, what does it process. mean by the word iterative? Not iterative, but iterative. Well, Iterative. What does it mean by iterative this? is a mathematical and uh, um, uh, computational process. वाह, ये कहाँ प्रोसेस लिखा है तो प्रोसेस मतलब मैथमेटिकल और कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा. इटरेटिव मतलब एनी प्रोसेस व्हिच इज डन अगेन एंड अगेन. ओके, Okay. रेपिटेशन इज देयर. ठीक है, आप कोई भी चीज को बार बार करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. So Okay, similarly, sir. if you do any communication, if you do uh, practice anything again and again, uh, Hmm. initially it may be incorrect, but later on there are chances that you may become perfect in it. So iterative process that involves the exchange of ideas, messages, or information. Understanding this process helps in improving communication by recognizing where barriers may exist and know to overcome them. जहां भी बैरियर्स आ रहा है कम्युनिकेशन का बैरियर, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री जी से How to मुलाकात करनी हो. overcome them? यस, आई एम आस्किंग यू अभिजीत,
let us take an example that you want to meet with the Prime Minister of India. Okay, क्या वहां पर में बोलना आसान है? No, sir. वहां पे क्या बात करें, कौन सा वर्ड बोलें, किस संदर्भ में बात करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वही मैं कह रहा हूं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइजिंग वेयर बैरियर्स मे एग्जिस्ट एंड हाउ टू ओवरकम देम। लेकिन अगर किसी पत्रकार को कहा जाए कि आप बात कीजिए प्रधानमंत्री मोदी से, तो उनको कुछ भी सोचना पड़ेगा, उनके पास कई No, सारे sir. मुद्दे हैं। उनके पास तो lots of words हैं. और जो मान Just लीजिए कोई कोई विद्वान है, कोई पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलर हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, उनके उनको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आम आदमी है, उनको बहुत सारा बैरियर्स होगा। तो सिमिलर थिंग हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इफ यू आर आस्क्ड टू attend a meeting, okay, wherein you would be the department representative, and you need to report to the CEO or the chairman or maybe the stakeholders of the company. Okay, then where to start, how to start, what to say, what not to say. What to say is very, very easy, but what not to say, that also has to be kept in mind. कितना बोलना है वो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं बोलना है ये भी आपको जानकारी चाहिए। एक लिमिट पता होनी चाहिए अपनी। आ रही बात समझ में? yes, हेलो। sir. हाँ। सो ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। कोई भी डील तभी पक्का होता है, कहां पर बोलने के टाइम में कहां पे रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, ये भी आपको जानना चाहिए। सो की स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर, यू रीड नंबर वन। Sender encoding the message. The sender is the person who initiates the communication. They are responsible for creating the message that needs to be communicated. So senders are basically the responsible person who are responsible for creating the message that needs to be communicated. अब ठंडा मतलब कोका कोला। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? Where has that student gone? Where is Abhijit? Abhijit? How can I explain it such? Okay, the sender is the person who initiates the communication. They are responsible for creating the message that needs to be communicated. The sender's role is to clearly define what they want to communicate, considering the process, audience and context. आपको audience भी ध्यान में रखना है कि किस टाइप की audience है, और अपना कौन सा बात को वहां पर रखना है, ये आपको बताना है। So encoding refers to the process of converting the idea or information into a format that can be transmitted. Encoding refers to, what does it mean by the word encoding? Encoding refers to the process of converting the ideas or information into a format that can be transmitted. And this could involve writing, speaking, using images, or even gestures. For example, a manager wants to inform the team about a meeting schedule, and they decide to write an email. So, encoding the message with clear language and providing the necessary details. If the manager wants, where where were you, Abhijit? Why did you leave the class? I want to discuss something and you are out. Then how can you expect me to, make you so much knowledgeable? On one side, you are expecting that
knowledge should be coming. Sir, And on the sir, other side, you are leaving the class in the rhythm is there. No? When I'm speaking, I don't look at the phone, I mean, every time. I keep on, giving best of the ideas. yes, sir. 1 minute break, 2 minutes break. In this way, you should leave. Okay, you should सर not leave immediately on your own. I सर will, सर वो सर yes. नेटवर्क इशू के चलते वो ऑटोमेटिकली कट हो गया था सर। What I was discussing, like Thanda matlab Coca Cola, it's a marketing campaign. Okay, so Thanda matlab Coca Cola. Prahlad Kakkar was the ad man. Okay, Prahlad Kakkar or Prasoon Joshi, I forgot. I think one of these two gentlemen. And so कोका कोला या आदमी को जब भी ठंडा पीना होता था तो क्या बोलता था, एक देखिए ठंडा मतलब कोका कोला, एक इतना छोटा वर्ड है, और इसका ऐड आता था आमिर खान, उसमें उसमें ऐड में आता था, याद आ रहा है आपको? यस सर। सर तो मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स का नाम से हम लोग को कोका कोला ही याद आता था, कोका कोला पेप्सी। अब देखिए यहाँ पे कोका कोला है, पेप्सी है, लिम्का है, थम्स अप है, सेवन अप है, और पता नहीं कितना सारा ब्रांड है, मुझे याद भी नहीं है, कंपा कोला है। ठीक है, परंतु ऐसा ऐड बनाया कि ठंडा पीना है, अरे भाई तो कौन सा ठंडा, तो आप कोका कोला दीजिए। मतलब जहन में वही चीज आ जाएगा आपको। तो क्या कम्युनिकेशन किया, दिस इज द कम्युनिकेशन, how the communication has been done from the sender to the receiver like we, आम जनता, विद्यार्थी, बच्चा, मजदूर, किसान, बूढ़ा, जवान, महिला, लड़की, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, वर्कर, सब ठंडा। विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अरे भाई कोका कोला देना। हॉस्टल में कैंटीन में खा रहे हैं, एक कोका कोला ले, पेस्ट्री एक कोका कोला। तो ये दिमाग में ऐसा, तो उसका कितना सेल्स बढ़ गया। तो ये क्या है, दिस इज कम्युनिकेशन, नथिंग 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 मोर देन दैट। what this is what it is, communication. So how it has been encoded and how it has been decoded, understood? ये कम्युनिकेशन का ही कमाल है कि कैसे करके कम्युनिकेट किया गया। आप देखिए छोटे बच्चों को, बहुत छोटा जो बच्चा है ना, नर्सरी एलकेजी में, उसके गार्जियन कितना भी समझा दे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, गलत लिख रहा हो तो ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, आप कितना भी बता दीजिए उसको, वो नहीं मानेगा। उसकी टीचर अगर बता देगी कि नहीं ऐसे लिखते हैं, टीचर ने भले ही गलत भी बताया हो, तो वो उसके दिमाग में बैठेगा, नहीं टीचर ने बताया है वो सही है, बाकी जितने लोगों ने बताया है सबका सब गलत है। आप सुन रहे हैं अभिजीत? यस सर। So what all these are the communication and impact of communication and effective communication होता है ना। आप छोटा बच्चा के ऊपर प्रयोग करके देखिएगा, उसकी टीचर ने जो कहा है उस बात को आप गलत बोलिएगा कि नहीं। अगर छोटा बच्चा से आप कहीं भेंट हो, घर में रिश्तेदार होगा या कोई बच्चा, उसको बोलिएगा, कुछ पूछिएगा, और टीचर ने क्या बताया है वो सीख के आया है, आप खुद ये प्रैक्टिकल करके दे, उसको आप गलत बोलिएगा कि नहीं ये गलत है, तुम्हारा टीचर ने गलत बताया है, तो आपको पिटाई भी कर देगा, गुस्सा भी हो जाएगा और बोलेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो टीचर ने कैसा कम्युनिकेट किया कि बच्चे के जहन में, दिलो दिमाग में बैठ गया। सो दिस इज व्हाट द कम्युनिकेशन इज। इन द सिमिलर वे व्हाट कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसे प्रचार किया, ऐसे बनाया कि वो जहन में बैठ गया। आई बात समझ में? यस सर। So manager wants to inform the team about a meeting schedule and they decided to write an email. So encoding the message with clear language and providing the necessary details. जब भी आप मीटिंग के लिए लिखेंगे तो पूरा डिटेल्स होना चाहिए उसमें, कितने बजे मीटिंग होगा, कितना देर का होगा, क्या एजेंडा होगा, कहाँ पर वेन्यू होगा, कौन उसमें कौन कौन लोग स्पीकर होंगे, क्या मुद्दा होगा, सारा। इसमें यानी कि कंफ्यूज करके लिख दीजिए टुमारो देयर इज अ मीटिंग, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। वेदर इट इज अर्जेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, नॉन इंपॉर्टेंट मीटिंग, कितना देर का मीटिंग, तो ऐसे नहीं होता है। नाउ मैसेज कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, द मैसेज is
the core information or idea that the sender wants to convey. मैसेज आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें क्या है जो आपको देना है, कन्वे करना है बातों को, उन बातों को आपको आपको कन्वे करना होता है. एंड दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इमेज, साउंड्स और जेस्चर्स. तो अपनी बातों को कैसे आप कन्वे कीजिएगा? आप वर्ड से, इमेज से और साउंड से और जेस्चर से आप कर सकते हैं. जस्ट okay. And now the message should be carefully constructed to match the audience's understanding. जब आप मीटिंग में या कहीं पर सेमिनार में बोलना हो या कुछ अपनी बातों को कहना हो, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑडियंस है जिनसे बात की जा रही है वो हमारा कैसा ऑडियंस है. मोदी जी जब बात करते हैं जनता से, तो आपने देखा है जब वो भाषण देने आते हैं, आपने देखा है कभी टीवी पर? ये सर लाइव भी देखे हैं सर, अच्छा, लाइव कहाँ पे? गोपाल मैदान में? गोपाल मैदान में सर। तो वो जो है वो जो वहां का जो बात है, वहां का जो मुद्दा है, वहां का जो समस्या है, उसको अपने में उतार लेते हैं और वहीं की भाषा में वहां का बात को उठाते हैं. तो लोगों को लगता है अरे ये तो मेरे बीच का आदमी है, मेरा ही बात उठा रहा है. जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहां का बात उठाते हैं, मतलब कहने का मतलब इंडिया लेवल का बात उठाते हैं. जब पाकिस्तान से डील करेंगे तो कश्मीर का बात उठाएंगे, वहां पर जमशेदपुर का बात तो नहीं उठाएंगे, या झारखंड का नो बात, सर, नो कश्मीर सर। का बात उठाएंगे. तो ये देखिए, ये भी एक कम्युनिकेशन है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्या कम्युनिकेट नहीं करना है. अब झारखंड में आए हैं और वहां पर में वो बात करेंगे आपको क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का, तो कोई मतलब है उसका? unless and नो until सर, it is नो, it is अननेसेसरी। no, no, unless and until it is of national importance, these matters are irrelevant. So that you have to keep in mind. So that's what they are saying. The sender needs to think about the content, format, timing of the message to make it effective. For example, the message could be: the meeting is scheduled for 3 p.m. tomorrow in conference room A. Please be on time. ठीक है, इस तरह से मैसेज दिया जा सकता है. कैसे? The meeting is scheduled for 3 p.m. tomorrow in conference room A. Please be on time. Now read from here. Encoding, converting the message into a transmittable form. Read. यहां से पढ़िए आप, पॉइंट नंबर 3 से, पेज नंबर 23. सर पॉइंट 3 सर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन। Please scroll it down. You don't have any the material in your mobile? है सर, ओके सर, ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट सर। Please scroll down. Okay, encoding, converting the message into a transmittable form. Encoding is the process of transmitting the sender's thoughts, ideas, or information into a form that can be transmitted. आप इनको देखा होगा, स्टीफन हॉकिंग्स, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स को देखा है आपने? अभिजीत, हैव यू सीन? सर देखे तो नहीं है सर। सुना है आपने? ये सर, हु वाज ही? सर फिलोसोफर सर थे मैनेजमेंट के। नहीं भाई, स्टीफन हॉकिंग्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और न बोल सकते थे, न चल सकते थे और न लिख सकते थे. तो उनकी बातों को सिंथेसाइजर के थ्रू जो है सो लोगों तक पहुंचाया जा सकता था. तो आप जरूर सर्च कीजिएगा गूगल में कि कौन थे. ब्लैक होल का उसने पता किया, बहुत सारा चीज, ठीक है, पार्टिकल ऑफ गॉड, क्या सब बहुत सारा चीज उसने खोज किया. तो कहने का मतलब जो स्पीड है, द सेंडर डिसाइड्स वेदर टू कम्युनिकेट वर्बली, नॉन वर्बली और इन राइटिंग, ईमेल, लेटर. किस प्रकार से बात को कहना है, लिखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंडर डिसाइड करेगा. एंड दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम chosen for communication. The sender has to ensure that
the message is encoded in a way that the receiver will easily understand. आपको समझ में आ रहा है अभिजीत? Yes, sir. अच्छा. For example, the manager might decide to send an email or a text message to communicate the meeting details. आजकल तो डिजिटल फॉर्मेट हो गया है, एक व्हाट्सएप में डाल देंगे उससे हो जाएगा, या रिटन फॉर्म में ईमेल में डाल देंगे. Now, this can you read this point number clause 4? Please scroll Sir, down. 24, page 24. Page 24. Okay, if it is there in your mobile, can you read it? one second. हम open नहीं Page किए. 24. Yes, yes, it is Yes, sir. happening. Page 24, चौथा पॉइंट. चलिए रीड कीजिए आगे स्क्रीन पे पढ़िए. पढ़िए. चैनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पढ़िए, आ गया जी स्क्रीन पे आ गया, पढ़िए. Hmm, okay. Channel medium of communications. हम्म, The channel is the medium thought which the messages the message is transmitted from the sender to the receiver. It can be verbal, spoken word, phone calls, non-verbal, body हम्म, language, facial expressions, हम्म, or written, email, memos, letter. हम्म. The choice of channel depend on factors such as the nature of the message, urgency, formality, and audience प्रेफरेंस. आप देखिएगा, preference. गायक लोग जो आते हैं, भले पंजाबी गायक हो, जब आएंगे बिहार में या ऐसे झारखंड में भी या यूपी में, तो भोजपुरी गाना भी एक दो जरूर गा देंगे, भले बॉलीवुड का ही सिंगर क्यों ना हो. तो चॉइस ऑफ द ऑडियंस, they want to they want to get connected with the the local audience, so to communicate properly, to be popular among them, to convey your message, to to get connected with them, you need to understand locality and local demand also, that you understand. Have you understood? Yes, sir. नहीं गा हम लोग भी देता है बहुत किए हैं. Yes, sir. भोजपुरी. भोजपुरी में अगर बंगाल जाएगा तो बंगाली गाना गा देगा ना. Yes, sir. दूसरे लैंग्वेजेस में भी गाते हैं. कस्टमर तो डिमांड के ऊपर है. तो वही तो मैं ऑडियंस. बोल रहा हूँ, जो पॉपुलर सॉन्ग है पंजाबी है तो पंजाबी में गा देगा. तो ऐसा कुछ नहीं कि है पंजाब का तो बिहारी में नहीं गाएगा या बंगाली में नहीं गाएगा, ऐसा कुछ नहीं. जो पॉपुलर सॉन्ग है, भले वो खराब गाए, लेकिन गाएगा जरूर. उससे क्या होगा, एक कनेक्टिविटी आता है, लोगों को झुमा देता है. तो ये सब क्या है, सारा कम्युनिकेशन है. ये दुनिया में एक ही चीज है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, और कुछ नहीं है. आ रही बात समझ में? जो अच्छे से कम्युनिकेट किया वो आगे बढ़ा, जो नहीं कर पाया वो पीछे रह गया. जमाना सिर्फ कम्युनिकेशन का है. So read, the choice of channel depends on factors such as the nature of the message, urgency, formality and audience formality. बहुत जगह आप बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं. जैसे आपको मिलना होगा डोनाल्ड ट्रंप से, तो आप एकदम फॉर्मल मीटिंग करना होगा आपको. Informal, you cannot be casual, you cannot be informal. If you have a scheduled meeting with the CEO or the director or the chairman of the company, you cannot be informal. But if you have to meet with the retailer, or maybe with the customers, then you may be a bit informal, so that you would be in a position to understand them better. Okay, so the manager may use email for formal communication or text messages for informal, quick exchange. For meeting announcement, email is often more appropriate. Now, receiver, you read. Sir, please scroll down. Okay, 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 okay. Mhm. Receiver decoding the message. The receiver is the person who receives the message. Once the message is transmitted, thought the Through to the send. chosen channel.
channel. The receiver decodes it, हम्म, which means interpreting or making sense of the informations. थोड़ा जल्दी Decoding. जल्दी पढ़िए, इतना Decoding स्लो। involves interpreting the sender message based on the receiver's experience, emotions, and context. The हम्म, receiver must understand the messages in तो intent. सेंडर ने जिस हिसाब से जो मैसेज भेजा भेजा है, अगर कोई डांट रहा हो बॉस, तो उसको डांट के रूप में ही लेना चाहिए, ये नहीं कि आप कॉमेडी के रूप में ले रहे हैं उसको। तो जिस मैंने भावना से किसी बात को कहा जा रहा हो, उसी भावना से उस बात को समझना भी चाहिए, ये नहीं कि कोई रो के कह रहा हो और उसको आप मजे में ले रहे हो, ऐसा नहीं। द रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड, जैसा उसको जिस भावना के साथ कहा जा रहा हो, उसी भावना के साथ उसको लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय रीड्स द ईमेल, अंडरस्टैंड्स द टाइम एंड लोकेशन ऑफ द मीटिंग एंड मेक्स नोट ऑफ द details. Now, feedback. Feedback is the response from the receiver back to the sender. It indicates whether the message Sir, has been received. Page 25. Feedback can be verbal, non-verbal, written or थ्रू एक्शंस। आपको हर काम के लिए फीडबैक, आप भी जब वसूली करते हैं अपने कस्टमर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या किससे करते हैं, रिटेलर से, sir, customers से। तो कस्टमर कभी कभी कुछ फीडबैक भी देता होगा कि आपका खराब था पेंट, क्या एशियन पेंट में, यू आर वर्किंग विद एशियन पेंट राइट? Yes, sir. तो फीडबैक सिस्टम भी है कुछ। Yes, sir. आपको एकदम है। जो कस्टमर फीडबैक देते हैं, लेकिन आपका भी तो फीडबैक जो है सो होता होगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट आपके बारे में फीडबैक देता होगा कि यस मेरा एक सर, लड़का है कंपनी वो से कॉल जाता है जाता है ना कस्टमर के पास। हाँ। कि आया था कि नहीं, मेरा लड़का आया था कि नहीं, कुछ बताया था कि नहीं, कलेक्ट हुआ था कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, रेगुलर विजिट करता है कि नहीं, ऐसे होता होगा ना जी। यस सर। तो फिर दैट इज द फीडबैक। सो द एम्प्लॉय रिप्लाइज टू द ईमेल सेइंग गॉट इट, आई विल बी देयर एट 3 PM। ये नहीं कि फीडबैक में जैसे आया बॉस का ईमेल आ गया कि 3 बजे आना भाई मीटिंग है, तो आप देख करके चुप रह गए, ऐसा नहीं। चुप नहीं रह जाना है फॉर्मल मीटिंग में, तो रिप्लाई भी करना होता है। जैसे क्या किया है, गॉट इट, सो दैट इट शोज योर योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स द वर्क। गॉट इट, आई विल बी देयर एट 3 PM। ठीक है। नेक्स्ट है नॉइज, पढ़िए। बैरियर्स और डिस्टॉर्शंस, पढ़िए। Noise, barrier or distortions. Noise refers to any from the inter interference नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, बोलिए, interference पढ़िए। or हाँ। distractions, the distorts the message, making it harder for the sender and receiver to communicate effectively. Noise can occur at any stage of the communications process. It should be external physical distractions like background noise, or internal हम्म, psychological factor बैक like बैक stress बैक or emotions. बैकग्राउंड नॉइज मतलब जैसे आप बोलते हैं कि सर बारात जा रहा है, उसका नॉइज आ रहा है। Yes, sir. इट कुड बी एक्सटर्नल physical distractions like background noise, and internal that is psychological factors like stress or emotions। So, आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो अपनी बातों को ठीक से नहीं कह पाएंगे। द रिसीवर Yes, sir. माइट मिस अंडरस्टैंड द ईमेल ड्यू टू एम्बिगुअस वर्डिंग। तो वर्ड भी आपका क्लियर कट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूजिंग वर्ड डाल रहे हैं, और पुअर इंटरनेट कनेक्शन माइट डिस्टर्ब अ वीडियो कॉल। सो अभी मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ अभिजीत, कि फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, see in the previous class itself, prior to previous class, I had asked you to go through whatever the the remaining pages are there, so you go through it. So have you gone through it?
so that see it would not be possible to complete the syllabus within the stipulated time. So if we wish to complete our syllabus within the stipulated time, then you also need to cooperate in the sense that you need to study at home. I already provided the study material to you, so you go through it. In the classroom it is not possible to discuss in details each and everything, but if you have any problem, you may ask, you may raise a doubt. And if I'm so if I no if I cannot do it, clear your doubt in that session, then I will ask you to keep your doubt, and we will clear it in the next class. So in that way we can cover our syllabus in a speedy manner. Are you getting my point? Okay, sir. नहीं तो ऐसे में क्या होगा ना, हम लोग करते रह जाएंगे, आपका एग्जाम भी यस ड्यू सर। है भाई। कब है कंप्लीट एग्जाम? नहीं हो पाएगा सर, अभी तक एग्जाम है डेट ना? नहीं आया है सर। मतलब कब भी फिर भी एक्सपेक्टेड? जैन फेब। तो जैन, ये तो दिसंबर चल रहा है भाई, कैसे होगा? और भी सब्जेक्ट है, और सब चल रहा है आपका, सब सब्जेक्ट, यस सर। सब सारा सब्जेक्ट? सारा सर। गौरी शंकर सर ले रहे हैं, मैनेजमेंट पेपर ले रहे हैं। ओके, तो ठीक है, चल रहा है ना, तो इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा। पढ़िए, और हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से सिर्फ टॉपिक देख करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलिए, आज जैसा है वैसा कर लेते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ। नाउ डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर लाइक सेंडर, सेंडर से कहाँ हो गया जी इनकोडिंग, इनकोडिंग से हुआ मैसेज, मैसेज से चैनल बना, कौन सा चैनल आप चूज कर रहे हैं, उसके बाद रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, उसका जो समझ है, उसका जो जानकारी है, उसके हिसाब से उसने डिकोड किया और उसको फीडबैक फीडबैक दिया, दिया। ठीक है? ओके। सो नॉइज कैन अकर एट एनी स्टेज, और नॉइज कहीं भी हो सकता है इसमें, एंड मे अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? बैरियर्स पढ़िए, फिजिकल नॉइज पढ़िए सर, फिजिकल नॉइज क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, सिमेंटिक ओके। नॉइज क्या है, कल्चरल, पढ़िए पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। फिजिकल नॉइस, इंटरनल साउंड और एक्सटर्नल। external, sorry sir, external sound or distraction that make it difficult for the receiver to hear or pay attention to the message. Example, background noise in an office or during a phone call. Second, psychological noise, internal factor like stress, basis, बायसेस, biases, biases, बायसेस मतलब कि पक्षपात। पक्षपात, okay. Biases, emotions or pre प्री con कॉन्सेप्शंस, that प्री कॉन्सेप्शन मतलब पहले से ही किसी चीज के बारे में अवधारणा बना लेना, विचार पहले से ही कर लेना कि ये आदमी okay, खराब है, ये आदमी अच्छा है। तो जिसके बारे में okay, खराब अवधारणा बनाए थे वो तो निकला बहुत अच्छा, और जिसके बारे में अच्छा सोचे थे वो तो निकला खराब। तो ऐसा पहले से किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है? आगे पढ़िए। that affect how the receiver interpret the message. हम्म, Example, an employee is preoccupied with personal issues and does not full focus on a meeting. तो साइकोलॉजिकल में क्या हो जाएगा? ही इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड, उसको पर्सनल इश्यूज है, मान लीजिए घर में झगड़ा है, कुछ लड़ाई है, केस चल रहा है, या कुछ पैसे का दिक्कत है, पहले से ही वो स्ट्रेस में है। देन डू यू एक्सपेक्ट हिम, सो व्हाट डज इट नीड? ही नीड्स to be counseled by the organization. If it is not available, then he cannot take that much stress. Next is what? Semantic noise. So Semantic misunderstanding, noise. yes, misunderstanding or confusing caused by the use of unclear, ambiguous, ऐसा ऐसा वर्ड आपने यूज किया है, इतना टफ टफ जार्गन बनाया है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज किया है, जिसको कि आप ही समझ सकते हो, लेकिन आपका ऑडियंस उतना समझदार नहीं है, आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं है। तो सिमेंटिक नॉइज है। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर जैसे हर आदमी का बिहेवियर अलग है,
अभी इंडिया में मान लीजिए कि प्रणाम करना, बड़े हैं तो उसको पैर छू के प्रणाम करना, ये तो हर जगह है, चाहे बंगाल में जाएं, बिहार में जाएं, उड़ीसा, केरला, पंजाब में जाएं, सब जगह है ना जी। यस सर। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ कंट्री में है, उसी तरह से आप दूसरे कंट्री में जाते हैं एक्सक्यूज मी, पढ़िए, तो दूसरे कंट्री में तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर गले मिलते हैं, कहीं पर हाथ मिलाते हैं, कहीं हाथ मिलाने का भी है कितना झुकना है, हाथ मिलाने के है कि कस के मिलाना है कि धीरे से मिलाना है, गले मिलने का भी है कि कस के पीठ थपथपाना है कि नहीं, तो ये सब कल्चरल है, बिहेवियर है। Values and interpretation based on culture can lead to miscommunication. For example, a direct communication style may be seen as rude in some cultures, while indirectness may be confusing in others. कहीं कहीं पर डायरेक्टली कम्युनिकेट करना एक रूड बिहेवियर को दर्शाता है और एक गलत व्यवहार है, मतलब ये नहीं, ये चलन में नहीं है। और कहीं कहीं पर इनडायरेक्ट बात करना वो भी खराब है। तो हर जगह का कल्चर अलग है। Technological issues, problems related to the medium such as bad internet connections or software injunction, poor video quality, ये सब है, तो technical issues है। Next is page number 27, that is, let us complete this, 35 slides are there. So we are on 27. Today we'll finish this unit 1. So improving the communication process. To make communication more effective, several strategies can be employed. Number one, clear and simple message. Choose the right channel. Active listening. Provide feedback. Overcome barriers and use non-verbal cues. तो इसको पढ़ लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये अच्छा चीज है, पढ़िए इसको। Improving the communications process. To make communications more effective, several strategies can be employed. First, clear and simple message. The sender should ensure the message in clear, simple, and structured to avoid ambiguity. Second is choose the right channel. Selecting an appropriate communications channels, email, phone, face to face, etc. Depending on the सिंपल एंड वेल messages. स्ट्रक्चर टू अवॉइड Yes, sir. एम्बिग्यूटी। मतलब क्या होता है जी? एम्बिग्यूटी मतलब Ambiguity मतलब sir. But गूगल में देख रहे हैं? नो सर, हम देख ही नहीं रहे सर, आप बता दीजिए। मतलब होता है कि वेल स्ट्रक्चर टू अवॉइड कंफ्यूजन, सीधा समझिए ना, कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी वगैरह क्या है? स्टैंडर्ड वर्ड है। जब आप ये सब वर्ड बोलिएगा ना, हम्म। तो समझ जाएगा कि आप एमबीए करके आए हैं, नहीं तो समझेगा कि ये एमबीए किया है, लेकिन अगर आप ये वर्ड बोलिएगा तो लगेगा कोई अच्छे अच्छे जगह से किया, अच्छा वर्ड, ये कम्युनिकेशन स्किल भी इसका अच्छा है, ऐसा ऐसा वर्ड है सब, ठीक है। कंफ्यूजन सब बोलता है, एम्बिग्यूटी कोई कोई बोलता है। ओके। हरी बात समझ में? यस। हम्म। So you should try to speak standard English, not gender English. So choose the right channel. Now selecting an appropriate communication channels like phone, email or face to face, etc. Depending on the message, मैसेज कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना अर्जेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में ये डिपेंड करता है। एक्टिव लिसनिंग, द रिसीवर शुड एक्टिवली लिसन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड क्लैरिफाई एनी पॉइंट्स इफ नीडेड। रिसीवर जो है उसको एक्टिवली वो सुनना चाहिए और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। प्रोवाइड फीडबैक, बोथ पार्टीज शुड प्रोवाइड एंड आस्क फॉर फीडबैक टू एंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है? फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक आएगा तभी ना कि अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, फीडबैक दीजिए तो। आई वॉन्ट योर फीडबैक लाइव, यू टेल मी। अभिजीत, यस सर। हाउ इज माई टीचिंग? सर, इज सर एब्सोल्युटली गुड सर। एब्सोल्युटली गुड। यस सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। Okay, so this is your feedback. यस सर। And that feedback you have given because I am teaching right now and I am in front of you. That's why. नो सर।
तो मेरे पीछे भी आप ये बात बोलेंगे? Yes, sir. अच्छा, Obviously, sir. चलिए। जो अच्छा है सो अच्छा है। हाँ, तो हर काम में फीडबैक चाहिए। फीडबैक देने का मतलब ये नहीं होता है कि खराब, फीडबैक का मतलब होता है कि और क्या इम्प्रूव हो सकता है, कहीं पर कुछ दिक्कत है तो उसको सुधारा जा सकता है। ये नहीं कि उसका निगेटिव, कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी देना चाहिए हर चीज का, कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज, इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश हमेशा रहता है। ओवरकम बैरियर्स नाउ, रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस बैरियर्स, नॉइज दैट माइट डिस्टॉर्ट। आप जब जाते हैं कुछ अनाउंस करने, माइक वगैरह खराब है, काम नहीं कर रहा, वीडियो नहीं चल रहा है, तो वहां पे जो मीटिंग में बैठे हुए उनका कितना उनको खराब लगेगा। तो ये सब पहले से वो ठीक रहना। लाइट चला गया, या साउंड नहीं आ रहा है, या फिर लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो ये सब गड़बड़ी, टेक्निकल इश्यूज नहीं आना चाहिए। यूज नॉन वर्बल क्यूज, एंश्योर दैट बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस अलाइन विद वर्बल मैसेज। जो आप मैसेज देना चाहते हैं उस बात में जोरदार तरीके से, दमदार तरीके, ये नहीं कि आप जोश भरना। सेल्स एम्प्लॉय को क्या है, मोटिवेट करना पड़ता है, उसको उसमें जोश डालना पड़ता है। तो जोश वाला बात कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं एकदम अपने खुद ही ऐसा बोलने के लग रहा है कि खुद में ही जान नहीं है, शरीर में जान ही नहीं है। तो उससे कोई जोशीला होगा, मोटिवेट होगा अभिजीत? No, sir. तो जो आदमी आपको मोटिवेट कर रहा है उसमें खुद में दिखाना होगा कि जान एकदम कर देंगे, हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, इस महीना में इतना हो जाएगा, ऐसा अचीव हो जाएगा, तब ना आपको भी लगेगा हाँ यस वी कैन डू इट। हम्म। पूछेगा हाउ इज द जोश, आप बोलिएगा लो सर। कि हाउ इज द जोश, हाई सर। हाई बोलना होगा ना। So consider cultural Yes, differences. sir. Now be mindful of the cultural backgrounds and communication styles of all participants, especially in diverse workplace. डाइवर्स वर्क प्लेस में सभी का जो वर्क कल्चर है वो आपको देखना होगा। पढ़िए कंक्लूजन, पढ़िए तो पेज नंबर 28, पेज 28, पढ़िए कंक्लूजन अभिजीत। वी आर शॉर्ट ऑफ Yes, sir. टाइम, प्लीज रीड। The the communication process is a systematic flow or messages from the sender to the receiver. Each step play in crucial role in ensuring the messages are transmitted, understood, and responding to effectively. By understanding the stage barriers and method to enhance communications, business can improve collaborations, reduce misunderstanding, and achieve better outcomes in both internal and external communications. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। Okay. Barriers of communications. Barriers to communication refer to obstacles or challenges that prevent or distort the effective exchange of information. These barriers can occur at any stage of the communication process during uh, encoding इनकोडिंग, or ट्रांसमिशन, डिकोडिंग encoding और फीडबैक। transmit feedback. Okay. अंडरस्टैंडिंग दिस बैरियर्स इज Understanding. क्रूशियल। तो आपको शुरुआत में ही अपना बैरियर्स को समझ जाना होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है? फिजिकल बैरियर्स, नॉइज हो गया। दीज बैरियर्स आर एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट हिंडर द, हिंडर मतलब, हिंडर मतलब क्या होता है अभिजीत? So, नहीं मालूम? सर हिंट, हम्म? सर जो हिंट देते हैं, जो हिंट देते हैं, वाह। नॉइस इज हिंडर मतलब होता है बाधा, बाधा उत्पन्न करना। सो हिंडर का फैक्टर्स दैट हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, आप प्रोसेस में है, और जो हिंडर, जो बाधा है, बाधा क्या है? जैसे नॉइज, नॉइज इज बाधा, अंडरस्टूड। दे कैन अकर व्हेन देयर इज अ डिस्टरप्शन। मेरे गले में खराश है, आप पढ़िए जल्दी जल्दी और जोर से। Noise, any external sound that interfaces with the
communication such as loud environments Okay. और background chatter, कुछ background में जोर जोर से आवाजें आ रही है तो वो बाधा उत्पन्न कर रही, नॉइज हो गया. Then distance, being physically far away from the person you are communicating with can reduce the effect. आप बहुत दूर में हैं, आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपको. आप गए हैं किसी बाबा का प्रवचन सुनने, आपको सुनाई नहीं दे रहा, किसी नेता का भाषण सुनने सुनाई नहीं दे रहा है. तो जो इसलिए नजदीक में, इसलिए उतने ही लोगों को बुलाइए या वैसा व्यवस्था कीजिए कि उतने ही लोग आ पाए. पुअर टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, आपका टेक्नोलॉजी जो है, वीडियो आप लगाए हैं, चलाए हैं, कुछ वीडियो नहीं चल रहा है, साउंड में कुछ गड़बड़ी है, बिजली चला जा रहा है, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा, या बॉक्स जो रखे हैं साउंड बॉक्स, वहां से आवाज नहीं आ रहा है. लैंग्वेज बैरियर्स, जैसे मैंने बताया कि मोदी जी आते हैं झारखंड में तो जय झारखंड जय जोहार से शुरू करते हैं, वो लोकल भाषा. कहीं जाएंगे तो वहां के हिसाब से शुरू करेंगे. तो लैंग्वेज बैरियर्स अराइज व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज और यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज. आपको अगर तमिलनाडु में बोला जाए, गांव में जहां पे किसान है, वहां पर भाषण देने के लिए, तो आप दे पाइएगा? आप हिंदी में बोलिएगा वो नहीं समझेंगे, क्योंकि गांव के हैं, किसान है. केरला में नहीं दे पाइएगा. हाँ, तो आप बोलिएगा सर हिंदी में, वहाँ वो पे समझ में. लोकल लैंग्वेज सर. हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, नहीं समझ पाएगा, तो वही फिर लैंग्वेज बैरियर्स हो जाता है, टर्मिनोलॉजी. जार्गन एंड जार्गन, व्हाट डू यू मीन बाय जार्गन? जार्गन का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं मालूम तो तुरंत बताया कि ये नहीं मालूम है सर. जार्गन मतलब कुछ ऐसा वर्ड यूज करना जो कि आपको पता है लेकिन दूसरे को पता नहीं है. सब आदमी आपके जैसा पढ़ा लिखा है, एमबीए है, वैसा जरूरी नहीं है ना, बीबीए है. तो कोई आदमी नहीं भी है, मूर्ख भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, साक्षर है, लेकिन सबको अपनी बात समझाना है. तो इसीलिए जार्गन यूज नहीं करना, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना है, वो C++, HTML इस टाइप का वर्ड यूज नहीं करना है. लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या आम भाषा में बोली जाने वाली भाषा या वर्ड यूज कीजिए. डिफरेंट लैंग्वेजेस कम्युनिकेटिंग इन a language that is not shared by both the parties can create misunderstanding. आप भी जो बात समझ रहे हैं या जानते हैं, और मैं भी जो बात बोल रहा हूं, अगर दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं तभी वो भावनाओं को समझ पाएंगे, अदरवाइज देयर विल बी डिस्ट्रप्शन in the in terms of understanding the language. So an international team may struggle to understand each other if they are using a second language or different native language. अरे बात समझ में, चाइना का राष्ट्रपति आता है, वो चाइनीज में बोलता है. अब इंडिया का आजकल तो हो गया, ट्रांसलेटर हो गया है, इनकोडिंग डिकोडिंग हो गया है, लेकिन पहले जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो दिक्कत होता था. ठीक है, बहुत जगह अंग्रेजी. फ्रांस का राष्ट्रपति आएगा तो फ्रेंच बोलेगा, अंग्रेजी भी नहीं बोलता है वो लोग. तो डिफरेंट लैंग्वेज. देन एम्बिग्विटी और वेगनेस, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स कैन कंफ्यूज द रिसीवर. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट साइकोलॉजिकल बैरियर्स, स्ट्रेस एंड इमोशनल स्टेट. आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए कोई बीमार है, कोई या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ है, या आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो यू आर नॉट फोकसिंग. सो इमोशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स. सो व्हेन इंडिविजुअल्स आर स्ट्रेस्ड or emotionally charged, they may not fully listen or process the message. Next is what prejudices or and biases. So preconceived notions or judgments about a person, किसी के बारे में एक पहले से एक अवधारणा बनाना कि आदमी अच्छा है या वो आदमी खराब है, या कोई टॉपिक के बारे में, तो ये गलत बात है. किसी मैनेजर के बारे में कि नया बॉस आएगा तो नया बॉस खराब होगा, पुराना बॉस जो था वही अच्छा था. वो अच्छा था लेकिन नया बॉस हो सकता है कि उससे भी बेहतर निकले, कौन जानता है. समझ रहे हैं आप अभिजीत? यस सर. हाँ, तो ऐसा होता है कि नहीं, लोग नया बॉस आ रहा है, कैसा होगा नहीं होगा, हो सकता है कि पुराना बॉस अच्छा था लेकिन उससे भी अच्छा निकले. तो मिसकॉन्सेप्शन और ये सब नहीं बनाना है किसी के, प्रेजुडिसेस एंड बाइसेस. So might ignore, misinterpret the employees input during meetings. Now perception differences किसी के बारे में, people of, जैसे मोदी जी के बारे में था कि वो आएंगे तो मुसलमानों को तकलीफ हो जाएगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. राम मंदिर पे आएगा
जैसे था राम मंदिर पे फैसला आएगा तो देश में दंगा हो जाएगा, खून का लहू बह जाएगा, एक बूंद खून नहीं बहा और किसी ने भी आंदोलन नहीं किया और राम मंदिर भी बन के उसमें रामलला भी विराजमान हो गए। एक सेकंड। जस्ट अ मिनट, समझ रहे हैं आप? यस तो सर। तो ये पहले से एक परसेप्शन बना लेना कि ऐसा हो जाएगा। और डायरेक्ट comment intent to constructive feedback might be perceived as criticism by someone who is sensitive। तो पहले से किसी के बारे में कुछ ऐसा मैसेज नहीं जानना, नहीं बना लेना। कल्चरल बैरियर्स जैसे लैंग्वेज एंड इडियम से डिफरेंट कल्चर्स में यूज डिफरेंट वर्ड्स फ्रेजेस और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बहुत जगह का जो आप जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में जरा कल्चर के बारे में भी स्टडी कर लीजिए आप। जैसे एशियन पेंट में काम करते हैं तो मान लीजिए आपको तिरुचिरापल्ली में भेज दिया जाए या कोच्चि में भेज दिया जाए तो वहाँ के बारे में जानना होगा, वहाँ का क्या खाना पीना है, वहाँ पे क्या कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे सत्कार करते हैं, कैसे आपको रिप्लाई करना है। तो ये आपको आपको वहाँ के जो कस्टमर है उनसे बात करने में, रिटेलर से बात करने में या बिजनेस लेने में आसानी होगी। आ रही बात समझ में? यस सर। नॉन तो ये जरूरी है कि नहीं? आप तो इधर है ना, इधर मान लीजिए कि बंगाल बिहार उड़ीसा ये सब में है आप, लेकिन यस आपको सर। भेज दिया जाए मान लीजिए कोच्चि में, गए कभी? नो सर, केरला साइड या नहीं गया है। केरला मान साइड गए लीजिए हैं। अंडमान में भेज दिया जाए। नो सर। अरे एशियन पेंट तो वहां भी है ना। यस सर, एकदम है। तो फिर तो फिर तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए कि क्रॉस कल्चर आदमी को सारा वो उसका वो होना चाहिए, मतलब एक्सपोजर। So non-verbal misinterpretation, body language, gestures and facial expressions can have different meanings in different culture। आप जैसे यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है और ऐसे मुंह चमका देते हैं, अरे फ्रॉन, यू आर जस्ट फ्रॉनिंग। स्माइल का अपोजिट फ्रॉन होता है। या कुछ और आप मुंह से ऐसे कर रहे हैं तो आपके लिए तो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे ने अगर देख लिया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसलिए अपना फेशियल एक्सप्रेशन को भी ठीक रखिए। इन सम कल्चर्स डायरेक्ट आई कांटेक्ट इज सीन एज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, किसी किसी कल्चर में डायरेक्ट आई कांटेक्ट कांटेक्ट को कॉन्फिडेंस कहा जाता है, लेकिन किसी किसी में डायरेक्ट आई कांटेक्ट को ऐसे बोलता है कि आंख आंख में आंख दिखाता है, ये झगड़ा वाला भी बात हो सकता है। हम्म। यस सर। सो एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन इस स्टाइल अ पर्सन फ्रॉम अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अब जैसे मैंने बताया कहीं पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन डायरेक्ट चैनल के थ्रू जा रहा है तो अच्छा माना जाता है, कहीं पर खराब माना जाता है। पेज नंबर 32, सिमेंटिक बैरियर्स में क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स और टर्म्स। आपको वर्ड्स और टर्म्स जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा आदमी ले उसको। डिफरेंट पीपल मे इंटरप्रेट द सेम वर्ड और फ्रेज इन डिफरेंट वेज। आदमी एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से उसको समझ सकता है, उसको बता सकता है। तो उसका जितना अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, उसको उसी सेंस में वो समझेगा। तो ओवर यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स, अब टेक्निकल टर्म्स आप इतना यूज कर रहे हैं लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। सब आपके जैसा थोड़ी इंस्टाग्राम और वो सब फेसबुक यूज करता है, नहीं करता है, या 5G यूज करता है, नहीं करता है। तो जार्गन यूज नहीं करना है। इंटरपर्सनल बैरियर्स, लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट भी बहुत बड़ा मुद्दा है हर जगह। जैसे आपका कस्टमर ने बोला कि भाई आ जाओ, आज 20,000 रुपया बोकारो में तुमको दे देंगे, आज विजिट कर लो। आप गए, अब बोलता है कि ना आज तो नहीं देंगे। आपके ऊपर भी टारगेट है, ऊपर से बॉस पूछेगा भाई तुम तो 20,000 रुपया लेने गया था, कितना कलेक्ट किया? बोलोगे कि सर वो तो नहीं दिया, वो तो बोलता है कि 1 महीना बाद देंगे। तो आपका भी क्या इंप्रेशन होगा? तो लैक ऑफ ट्रस्ट, द कंपनी इज हैविंग lack of trust on you and you are having lack of trust on the customer। am I right? यस सर। So if two colleagues do not trust each other, a simple suggestion could be misinterpreted as criticism or manipulation। Next is what? Poor relationship। A manager who has a tense relationship with a team may find it difficult to communicate effectively। अगर मैनेजर का ही अपने टीम मैनेजर का ही अपने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है तो कैसे वो काम कर पाएगा, कैसे वो
अच्छे से अपनी बातों को कह पाएगा या आउटपुट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। मैनेजर बोलेगा ए तो एम्प्लॉय समझेगा बी, करेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब मान लीजिए मुख बधिर है, अगर कान से कम सुनता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, तो कम सुनता है तो आप जो कहेंगे आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं और आपकी बातों को समझेगा ही नहीं, उससे क्या होगा, मैसेज ठीक से कम्युनिकेट हो ही नहीं पाएगा। तो फिजिकल ये हो गया, मतलब डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयर्ड। विजुअल इम्पेयरमेंट्स, आपने विजुअली कुछ दिखाया वीडियो में, समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी को वो आंख में प्रॉब्लम है, दिख ही नहीं रहा है, तो ये जो विजिकल प्रॉब्लम। नाउ स्टेटस एंड पावर डिफरेंस in any organization, hierarchical differences in status and power can influence the communication process, like fear of authority। बड़ा बॉस है, उसके पास कैसे जाएं, उससे कैसे बात करें, मेरा तो टारगेट हुआ नहीं, मुझे तो नौकरी से ही निकाल देगा। A junior employee may avoid offering feedback in a meeting if they fear it will be dismissed। भले ही आपको आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, आपको आवाज उठाने में डर लग रहा है, अगर मैंने आवाज उठाया तो मेरा तो नौकरी चला जाएगा भाई। स्टेटस रिलेटेड कम्युनिकेशन स्टेटस, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव में डिक्टेट डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग लोअर लेवल। सीनियर लेवल का आदमी है, बिना नीचे से फीडबैक लिए डायरेक्ट अपना आदेश लागू कर दिया, उसका असर कुछ और हो गया, तो वो भी नहीं करना चाहिए। ओवरकमिंग दिस कम्युनिकेशन बैरियर्स, सो क्लैरिफाई एंड सिंप्लीफाई द मैसेज। जो भी मैसेज है, जो भी बात कहनी है, उसको क्लैरिफाई कीजिए और सिंपल रखिए। चूज द राइट मीडियम, जैसे ईमेल के थ्रू है, फेस टू फेस है, या फोन कॉल के थ्रू बात करनी है, तो उस मीडियम को चुनिए, चूज कीजिए। इम्प्रूव एक्टिव लिसनिंग। ऐसा ध्यान रखिए कि जो भी आपको सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनर की तरह सुन रहे हैं। प्रोवाइड फीडबैक, एनकरेज एंड आस्क फॉर फीडबैक टू एंश्योर द मैसेज वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। Cultural sensitivity, be aware of cultural differences and adapt communication to be respectful of others culture norms। ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो दूसरे के कल्चर को आप खराब समझे, और दूसरे दूसरे कम्युनिटी से हैं तो आपके कल्चर को खराब समझे, ऐसा नहीं। अडेप्ट टू द ऑडियंस नीड्स, ऑडियंस का क्या नीड्स है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस। 35 लास्ट पेज वी आर डूइंग। Okay, address and physical disabilities, provide accessible formats for individuals with physical disabilities. For example, captions for videos, screen readers, and for now conclusion you do, and with this we'll end our session. You read conclusion, Abhijit. Communication barrier can No, no, hinder. conclusion you read. सर कंक्लूजन नहीं रीड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़िए, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Communications barrier can hinder effective interactions and understanding between individuals or groups. Recognizing and addressing these barriers and essential for improving communications, whether in personal interactions, team collaborations, or business dealing. By implementing strategies to overcome this barrier, individual and organizations can foster uh, clearer, more efficient, and more inclusive communications. Okay, so thank you very much and bye. With this we